अच्छा, last time we started this exercise, that is the review exercise. Okay, इनमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फ्यू क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क असाइन किए थे. ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक पार्ट ई असाइन किया था और एक पार्ट एफ. ओके, दिस क्वेश्चन यहाँ पे ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. तो यहाँ पे आपका अननोन क्या हो जाएगा? एफ इज द अननोन. ओके, so this line is crossing these two lines like this. Okay, so this is 122, so this will also be equal to 122. This is 123, so this will be equal to, so this is 122. Okay, ये आपका क्या आ जाएगा? This angle will be equal to 180 minus 123. yeah 180 minus 123, 57 आता है I think. Yeah, 57. So this will be 57. Okay, what about this angle? That's equal to this angle is, 180 minus 122. yeah, that's equal to 58. Okay, so F angle will be equal to 58 plus 57 plus unknown equals 180. good. Unknown is F. Okay, so your F angle will be equal to 180 minus 58 minus 57. That's equal to 65. So this will be your final answer. Clear? Yes. Okay. Question number F. यहाँ पे भी हमने, what do you think, क्या करना है? These two are the parallel lines. And this line is crossing these two. इस तरह हो गई है. ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं उसके बाद. ओके, सो दिस इज 37. दिस इज 37, सो ये भी आपका 37 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से. ओके, अच्छा, यहाँ पे देख लो, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 238 minus 180. yes, because this is unknown plus 180 is equal to 238. So your unknown will be equal to 238 minus 180. So unknown will be equal to 238 minus 180 is equal to 58. तो ये आपका 58 आ जाएगा. अच्छा, दिस इज 58, दिस इज 37, ये कितना हो जाएगा? 58 plus 37 plus unknown equals 180. ओके, 37 plus 58 plus unknown equal to 180. So your unknown angle will be equal to 180 minus 58 minus 37. That's equal to 85. ये आपका 85 आ जाएगा. ओके, दिस इज 85. अच्छा, वी नीड टू फाइंड द अननोन वैल्यू g. तो g के लिए हमने क्या करना है? What I did was that I a parallel line in the middle,
You draw a parallel line in the middle, and then 37 is alternate to the first part of it, and the other part is parallel to no alternate to 58. Okay, like this. Yes. Okay, these two lines are parallel to each other. So 37 and this will also be equal to 37. Okay, these two are also parallel to each other. So this is 58 and this will also be equal to 58. Good. So your 5G will be equal to 37 plus 58. So 5G will be equal to 95. G will be equal to 19. दिस विल बी अननोन वैल्यू. अच्छा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं जो मैं कर रहा था अभी. यहाँ पे देख लो, ये आपका इस तरह आ रहा है. दिस इज़ 180. ओके, तो इट मीन्स कि 180 इज़ मेड अप फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ 5G प्लस 85. सो दैट्स 180 माइनस 85 इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 5. यू विल गेट 19. तो वो भी आपके पास आ जाते हैं. मल्टीपल मेथड्स हैं. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस. ओके. Okay. यस. ओके, इसके बाद मैंने आपको दिया था EF हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था. क्या ये हमने किया था? I think so. जी किया था. ओके, तो क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक? पार्ट 2 कर लेते हैं. पार्ट 1 तो आपका BDE. तो BDE वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. सो आपके 360 minus 3. या ये एंगल कितना आ रहा है? 360 माइनस 316 आ रहे हैं. तो 360 माइनस 316 दैट इज़ 44. तो ये 44 आ रहे हैं और ये दोनों आपके इस तरह पैरेलल लाइंस हैं. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो ये आपका 44 है एंड दिस लाइन इज क्रॉसिंग दीज टू लाइंस लाइक दिस. सो ये आपका 44 है. दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 44. अच्छा, वो तो फाइंड हो गया. अब हमने ABD. तो ABD we need to find that angle, this one. These two are parallel to each other. Okay, this line is crossing this line. Okay, ये दो lines भी parallel हैं. So आपका ये इस तरह हो जाएगा कि इन दोनों का एंगल्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे 58 है. सो यहाँ पे भी ये आपका 58 हो जाएगा. ओके. अच्छा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 58 because they're Yeah. alternate. this will also be equal to 58. Good. Question number 8. In the figure the line AB. Okay, 8 तो हमने किया था या नहीं किया था? मैंने आपको ट्राई के लिए दिया था. इसको कर लेते हैं. In the figure the line AB and CD are cut by the transversal PQ and RS. Okay, if PWQ is equal to 123 PW and Q. BWQ is equal to 123 degree. This is 57 and this is 118. So we need to find DZR. We need to find this angle. So ये क्या हो जाएगा?
118. उन्होंने कहा है कि ए बी लाइन और आपका सी डी लाइन पैरेलल लाइन से। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीपल वेज से कर सकते हो। उन्होंने कहा कि द लाइन ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल पी क्यू एंड आर एस। ओके, तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर then this line will be transversal. Okay, this will be your P and this will be, so PQ is the is cutting these two parallel lines. Okay, so that's why this is known as transversal. इसको transversal कहते हैं line. Okay, like AB, and if two lines are parallel to each other, and third line, if third line is crossing these two parallel line, then this third line is known as the transversal line. Okay, अच्छा, तो यहाँ पे आपका ये 118 आएगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि लाइक लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल is equal to 180 degree, and sum of all angle in a rectangle is equal to 360 degree. So this is rectangle, so 360 degree will be equal to 123 plus 118 plus 57 plus unknown. सो इससे आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, सो यू विल गेट 62, योर अननोन एंगल इज 62 आ जाएगा। अच्छा, अब हम दिस इज 62, बट द क्वेश्चन इज फाइंड दिस एंगल, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। सो 118, सॉरी, this unknown plus this angle is equal to 180. So your unknown will be equal to 180 minus 62, that's equal to 118. तो मल्टीपल वेज है, आप उस तरह भी कह सकते हो, या लाइक आपने कहना है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 118 because AB line and CD line are parallel to each other and RS is crossing these two parallel lines. So 118 will be the alternate angle of BXZD या RZD. ओके, इस तरह के एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया करो या इस मेथड से कर लिया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In the figure, AB line is parallel to FE line. This angle is W, this angle is X, this angle is Y, this angle is Z. Form an equation connecting X, W, X, Y, Z. Okay, we need to make an equation. Equation means कि जिसमें आपका equal sign हो. Okay, that is known as equation. Like 4x plus 6. If this statement is given to you, so this is not an equation. Okay, ये equation नहीं है because यहाँ पे equal sign नहीं है. बट अगर मैं आपको इस तरह दूँ कि 4x plus 6 is equal to 4, तो फिर ये आपका इक्वेशन बन जाता है बिकॉज यहाँ पे आपका इक्वल साइन आ गया। तो हमने इस तरह के इक्वेशन बनाने जिसमें ये सारे अल्फ़ाबेट रिलेटेड हो, लाइक आपका XY plus 7Z is equal to 0, इसमें सारे अल्फ़ाबेट आ गए कि नहीं, W नहीं आया, X Y Z आ गया है। तो ये इस तरह की इक्वेशन नहीं, हमें इस तरह की इक्वेशन चाहिए जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएं। XY plus WZ is equal to 4. So this is equation. तो इसी तरह का एक इक्वेशन हमने बनाने थ्रू और पास्ट नॉलेज जो हमने अभी लास्ट फ्यू डेज में एक्सरसाइज किए हैं। तो यहाँ पे देख लो, AB line is this line, FE line is this line, ओके, और आपका दिस इज W, ओके, तो this is X, this is okay Y, and this is Z. यहाँ पे भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब चेक कर लो, सो दिस इज Z, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू Z. Okay, this is W, so this will also be equal to W.
Okay, so this will be equal to, this angle will be equal to x naught minus w. ओके, टोटल आपका x है, दिस इज अननोन, तो अननोन प्लस w इज इक्वल टू x, तो आपका अननोन क्या हो जाएगा, x माइनस w. ओके, अच्छा ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू y डिग्री माइनस z. ओके, टोटल आपका ये कितना था, y था, तो y इज मेड अप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अननोन प्लस z, तो अननोन क्या हो जाएगा, y माइनस z हो जाएगा, तो y माइनस z आपका ये आ गया. अच्छा, दिस ये लाइन क्रॉस कर रहा है. ओके, दिस लाइन इज क्रॉसिंग दीज टू लाइन्स लाइक दिस, तो this angle is the alternate angle of this angle, और ये कितना होगा, ये हमारे पास 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू 180 because this is unknown, so 180 complete is equal to unknown plus this angle which is y minus z, तो अननोन क्या हो जाएगा, 180 माइनस y प्लस z हो जाएगा, तो ये आपका 180 माइनस y प्लस z हो जाएगा. अच्छा, ये दोनों अब अल्टरनेट एंगल है, सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो आपका x नॉट माइनस w विल बी इक्वल टू 180 माइनस y प्लस z, तो आपका ये आ जाएगा x माइनस w प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 180, सो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. ओके, इसमें w भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया. दोबारा समझा दूं मैं? Yes, please. ओके, अच्छा क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू फॉर्म एन इक्वेशन विच कनेक्टिंग w, x, y एंड z अल्फ़ाबेट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये 4 लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को पैरेलल लाइंस हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कंसिडर दीज टू पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे देख लो, तो आपका ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस लाइन इज क्रॉसिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, सो दिस w विल बी इक्वल टू दिस. ओके, अल्टरनेट हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पे नीचे आपका ये आपका हो जाएगा, दिस इज z. ओके, ये आपका z है. अब हम इन दो पैरेलल लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज z, तो ये भी आपका z हो जाएगा. सही है. अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना था, दिस इज x, यहाँ से लेके यहाँ तक x था, तो टोटल एंगल इज x विच इज मेड अप फ्रॉम दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सो ये एंगल कितना है, w है. अच्छा, ये एंगल कितना होगा, दैट इज अननोन, सो आपका अननोन क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस w हो जाएगा. So it means that this angle will be equal to x minus w. Okay, clear? यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज z, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल इज y, टोटल एंगल इज y. वी नीड टू फाइंड दिस एंगल दैट इज अननोन प्लस z, सो आपका अननोन एंगल क्या हो जाएगा, y माइनस z हो जाएगा. सो y माइनस z आपका ये अननोन एंगल हो गया, दिस एंगल. अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इन दो पैरेलल लाइंस को हमने अब कंसिडर करना है, दिस लाइन एंड दिस लाइन.
ओके, एंड दिस लाइन इज क्रॉसिंग दीज टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ, ये एंगल एक्स नॉट माइनस डब्ल्यू, और ये आपका यहाँ पे ये एंगल आ रहा है। दीज टू आर द अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं अल्टरनेट एंगल्स को इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू दिस अननोन एंगल। ओके, दिस एंगल, ये इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स हैं तो वो तो इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो तो टोटल कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 180 है। ओके, 180 दैट्स इक्वल टू दिस अननोन, 180 इज मेड अप फ्रॉम अननोन, प्लस ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका y माइनस जेड आ रहा है। सो अननोन क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई प्लस जेड, दैट इज अननोन, ये एंगल हो जाएगा। ओके, तो अब मेरे पास क्या था, अननोन मैंने फाइंड कर लिया, दैट इज 180 माइनस वाई प्लस जेड। तो आपका x माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू अननोन विच इज 180 माइनस वाई प्लस जेड। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट दिस फाइनल इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ओके, अच्छा इसको आप ट्राई कर लो आफ्टर दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 को आपने ट्राई करना है। ओके, कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है। अच्छा, स्कूल में ये चैप्टर 11 स्टार्ट किया है ना? चैप्टर 11 अभी अभी ख़त्म हुआ था। अच्छा, तो होपफुली हम भी कर लेंगे। उन्होंने अब क्या स्टार्ट किए हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? चैप्टर 15 आज स्टार्ट किया था। अच्छा, चैप्टर 15। ओके लेकिन चैप्टर 15 इतना मुश्किल नहीं है। ओके। अच्छा, triangle is made up from 3 sides. Okay, AB in this case, AB side, CD, CA side and CB side. Okay, अच्छा ट्राइंगल में जो आपका ये होता है ना, यहाँ पे देख लो, ये A या C या B, इनको हम वर्टिस कहते हैं। ओके, वर्टिसेस इसको हम कहते हैं। हम कहते हैं ए वर्टिस, बी वर्टिस पे क्या एंगल है, क्या वैल्यू है, सी वर्टिस पे क्या वैल्यू है, तो इनको हम वर्टिस कहते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एंगल्स की, कि एक आपका या तो एंगल इस तरह होगा, सही है, या आपका एंगल इस तरह होगा। ओके, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के इनसाइड है, तो इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। इनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, सही है, ये आउटसाइड द ट्राइंगल है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो या तो इस तरह होगा कि आपके सारे इक्वल साइड्स होंगे, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, विल बी इक्वल टू दिस साइड, लाइक इफ दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, this side will also be 4 centimeter, this side will also be 4 centimeter. So if all the sides are equal to each other, then that triangle is the equilateral triangle. It means कि equal होंगे, सारे sides आपके equal होंगे। ओके, equilateral triangle। अच्छा, ये बात आपने जहन में रखना है कि equilateral triangle में sides भी सेम होंगे, sides का जो लेंथ होगा वो भी सेम रहेगा, और साइड्स जो एंगल होगा वो सबका सेम रहेगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सारे एंगल्स भी सेम रहेंगे, सारे साइड्स भी सेम रहेंगे। तो सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स के सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इट मीन्स के थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। So it means कि 3 theta is equal to 180. So theta will be equal to
इट मीन्स कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका एंगल 60 डिग्री रहेगा। ओके, एक ही वैल्यू रहेगी एंड दैट इज 60। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आइसोसेसल ट्राइंगल आ जाता है। तो आइसोसेसल ट्राइंगल में हमारे पास सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगे, ट्राइंगल के दो साइड्स मेरे पास इक्वल होंगे और बाकी एक साइड आपका अनइक्वल होगा। इफ दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, लेट्स से this side will also be equal to 4 centimeter, this side will not be equal to 4 centimeter, this side will be either 5 or 6 or 7 centimeter. Okay, so in this triangle two sides are parallel, two sides are equal to each other, so that's why this type of triangle is known as isosceles triangle, इनको हम कहते हैं। अच्छा, isosceles triangle में तो दो sides आपकी equal होंगे, जो अब ये दो sides जो थर्ड साइड के साथ एंगल बनाएगा वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। यहाँ पे लिख दो, तो ये साइड थर्ड साइड के साथ ये एंगल बना रहे हैं, इसी तरह ये साइड थर्ड साइड के साथ ये एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ओनली दिस टू एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। इफ दिस इज 40, दिस विल आल्सो बी 40, और ये या तो 40 होगा या 50 होगा या 30 होगा, ये 40 नहीं होगा, सही है, ये आपका या अबव 40 होगा या लेस देन 40 होगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेसल ट्राइंगल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं, उनको हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें आपका कोई इक्वल साइड नहीं होगा, सारे साइड्स डिफरेंट होंगे और सारे एंगल्स भी आपके डिफरेंट होंगे, उनको हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। सही है। So this is the classification of triangles. अच्छा, इसमें और भी आ जाते हैं जो हमने पढ़ा भी हैं, विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये भी यहाँ पे भी देख लो तो 3 साइड्स हैं, सो दिस इज ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी आपका इफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट ट्राइंगल इज नोन एज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया तो बस आपने कहना है कि दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एक्यूट एंगल एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द ऑप्टस एंगल। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय एक्यूट एंगल? Acute angle is an angle more than 40 degrees and less than 90 degrees. More than 40 degrees? मैंने पहले आपको ये इसी तरह का ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे एंगल क्या होंगे, यहाँ पे आपका एंगल एक्यूट एंगल आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख लो तो आपका एंगल फॉर एक्यूट एंगल द एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 90। तो ये देख लो यहाँ पे एंगल होगा तो एक्यूट, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में जहाँ पे भी आपका एंगल आ जाए तो वो आपका एक्यूट एंगल आएगा। ओके, अच्छा, अगर ये एरो यहाँ पे आ जाए स्ट्रेट वर्टिकल पे तो ये आपका राइट एंगल होता है। इफ द this arrow is crossing this vertical line in this direction सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इनको हम ऑप्टस एंगल कहते हैं। ओके, ऑप्टस एंगल आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक रहता है, सो दिस इज द ऑप्टस एंगल। ओके, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस एरो के साथ बनाएगा, ये एंगल मेरे पास ऑप्टस रहेगा, दिस एंगल। ओके, ये आपने जहन में रखना है कि दिस एंगल, ओनली दिस एंगल विल बी योर ऑप्टस एंगल बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। ये सारे एंगल्स, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे होते हैं, तो दीज ऑल दीज एंगल्स जो ये एरो बनाएगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये एंगल आपके इस तरह रिफ्लेक्स एंगल रहेगा।
like this is the reflex angle. ओके, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल लेना है, सो दिस विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल. अच्छा, एंगल में एक बात ही आपने यह जहन में रखना है कि इफ़ यू मूव क्लॉकवाइज, एंगल में अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, एंगल आपका पॉजिटिव रहेगा. इफ़ यू मूव क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो फिर एंगल आपका नेगेटिव रहेगा. सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. अच्छा, ऑप्टस एंगल आपका दैट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे देख लो, तो ये इसमें एक एंगल आपका बन रहा है. आपने एक एंगल को चेक करना है. इफ दैट वन, इफ आउट ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल, इफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा. इफ वन एंगल इज इक्वल टू, इफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू इज लेस देन 90 डिग्री, तो वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा. इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो वो आपका ऑप्टस एंगल ट्राइंगल रहेगा. सही है, यहाँ पे देख लो, तो ऑप्टस में आपका एक एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है. वैसे 90 डिग्री इसका ये बनता है, बट ये क्रॉस कर रहे हैं 90 डिग्री को, ये एंगल क्रॉस कर रहे हैं 90 डिग्री को, सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑप्टस एंगल. ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है. ओके, अच्छा, एक्सरसाइज कल से फिर हम स्टार्ट ले लेंगे. सही है.